Good morning, students. Today we start the class 10th and the topic is polynomials. Polynomials is the chapter number 2 of your NCERT book. चैप्टर 1 हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो थोड़ा इजी भी है और उसमें तो HCF और LCM जो है वो उसके बारे में है, तो वो इतना ज़्यादा ध्यान हम उसको क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। पॉलिनोमियल जो है वो इसलिए भी शुरू कर देंगे, आपका पहले से पढ़ा हुआ भी है, 9th का भी है। Now what is polynomial? Any expression or equation having variable and constant. Variable, you know about the variable, the alphabets A, B, X, Y, and the constant term are having the number which having the fixed values. When the variable and constant combined with plus, minus, multiply and divide sign and with equal to, then it becomes an equation. Now it is polynomial. Now the second is degree of the polynomial. If Px is polynomial in X, the highest power of X in Px is called the degree of the polynomial. Now what is the meaning of this? That you already know about the degree. The degree is the power of the variable. Now in 2x plus 3, what is the variable? Variable is x, and x has a power 1. The number which don't have the power always have the power 1. X square plus 3x plus 4. I am not talking about these terms. It has 2 terms, it has 3 terms, it has 4 terms. I am not talking about the terms. We are talking about the degree, and degree is the power, highest power of the variable. In 2x plus 3, x is the variable and the power of x is 1. It means this polynomial has degree 1. So the polynomial which have the degree 1 is called linear polynomial. Now what is the degree of this term? 2. 3x, only x is the variable, it has the degree 1, and 4 constant. You know the constant value has the degree is 0. So the first term has degree 2, second is 1, and third one is 0. Then what is the highest power? The highest power is 2. It means this polynomial has the degree 2, so it is called quadratic polynomial. Again like this, it has the degree of highest degree is 3, so it is called cubic polynomial. Now the general form of the polynomial. The linear polynomial is generally written in the form of ax plus b. This is the form of quadratic equation, and this is the form of cubic equation. The numbers a, b and c and d are real numbers where a is not equal to 0. Now we are talking about ax plus b. Ax plus b. What is a? A is the coefficient of x. So in linear equation, a is the coefficient of x. In quadratic equation, a is the coefficient of x square, and b is the coefficient of x, and c is constant term. Again, if the equation is in form of cubic polynomial, then a becomes the coefficient of x cube, b is the coefficient of x square, and c is the coefficient of x, and d is the constant term. Now we take some examples. 2x plus 3 equal to 0. Now tell me what is the coefficient of x? 2. X plus 4 equal to 0. Then what is the coefficient of x? 1. The number x has actually 1x.
so the coefficient of x is 1. 3x plus minus 5 equal to 0. What is the coefficient of x? 3. And which is the constant term? minus 5. इसको ध्यान रखना है सब लोगों को। क्या ये ध्यान रखना है? 3 और 5. इट इज नॉट 5. The constant term is minus 5, and in this case the constant term is plus 3. These all are the examples of linear equations. Now I write the general form of quadratic equation. 2x square plus 3x plus 5 equal to 0. Now simply I ask, what is A? A is 2. What is B? B is 3. What is C? C is equal to 5. इसको आप समझ लें क्योंकि बहुत सारी चीजें हम A, B और C में डिस्कस करेंगे। अब आपको जनरल फॉर्म से पता लग गया होगा कि A, what is A? A is the coefficient of x square. That's why the value of A is 2. And the coefficient of x is B. Therefore, the value of B is 3. And the C is the constant, so C is 5. So these are the values of A, B and C. A, B and C are coefficients of x square, x or constant. Now I write the cubic polynomial 2x cube plus 4x square plus 5x minus 3 equal to 0. Now in this case, what is A? A is 2. And what is B? B is 4, C is 5 and D is minus 3. Now you better understand that what is A, B and C. A is 2. A is the coefficient of x cube. B is the coefficient of x square. And C is the coefficient of x. And minus 3 is the constant term. As you know in 9th class that how to find out the zero. What is the zero of this? The value of polynomial and zero of the polynomial. The value of polynomial. The value. What is the value of polynomial? What value of polynomial is actually the value of variable. The value of variable. In this case, what is the variable? X. It means the value of variable x which makes the whole equation 0 is called the zero or value of the polynomial. In 9th class, we find out the zero of linear equation. How to find out? Let's 2x plus 4 equal to 0. Then 2x is equal to minus 4. So x is equal to minus 4 upon 2 to minus 2. When we put the value of x minus 2, the whole this polynomial becomes 0. Let us try 2. The value is minus 2 plus 4 equal to 0. 2 multiplied by minus 2 minus 4 and plus 4 equal to 0. When we put the value of x is equal to minus 2, then this polynomial becomes equal to 0. That is the meaning. That what the zero of the polynomial. It means the value of x. It means the value of variable which we put in this equation and the whole equation becomes 0. ये हम पढ़ चुके हैं क्लास 9 को। हमने पता किया है कैसे हम जीरो पता करते हैं। नाउ टेल मी द व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन।
Again we take 2x is equal to 3, then x is equal to 3 upon 2. It means what is the 0? आप ऐसे याद कर लें, 0 is actually the value of variable. It is either be x, y, v, u, w or anything. ये पॉलिनोमियल ऐसे हो सकता है, तो आप देखिए कि वैल्यू ऑफ y जो आएगी वो क्या आएगी, -5/2. तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है उसकी जो भी वैल्यू होगी वो उस पॉलिनोमियल का क्या होती है, 0. Now this is x square plus 7x plus 10. This is the example of quadratic equation. Now how to find out the 0 quadratic equation? First of all, we change the equation into factors. Quadratic equation means it is a combination and multiple of two linear polynomials. X plus 2 and x plus 5 are two factors of this. When we multiply these two linear polynomials, we get the quadratic polynomial. So how to find out, how to factorize? It is, do you know how to factorize? We factorize it by splitting the middle term. So you know very well about this. We convert this 7 into two terms that the multiple is equal to 10 and add or subtract becomes 7x. So it will become 5x plus 2x. 5x plus 2x becomes 7x. 5x and 2x when is multiplied becomes 10x square. X is common, x plus 5 plus 2x plus 5. Now the two factors are x plus 2 and x plus 5. These are the two factors. These two factors are linear polynomials. So how to find out the 0 of linear polynomial? X plus 2 equal to 0, so x is equal to -2. Now the second factor is x plus 5 equal to 0, so x is equal to -5. So I have the two values of x, -2 and -5. अब आप बताएं, यहाँ तो हमने देखा कि केवल एक वैल्यू आ रही थी, x की वैल्यू आ रही थी तो -2 या फिर आई 3/2 या फिर आई -5/2. लेकिन जब हमने इसको सोल्व किया तो x की दो वैल्यूज आई. इसका मतलब यहाँ पे इन सब की एक एक जीरो थे, लेकिन यहाँ पे इसके दो जीरो है. ऐसा क्यों? क्योंकि ये कौन सी इक्वेशन थी जिसको हमने सॉल्व किया है, वो कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने, व्हाट इज द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 2. व्हाट इज द डिग्री ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल? 1. इट मींस जो जिसकी जितनी, इसीलिए हमने स्टार्टिंग बात की, जिसके जितनी डिग्री होती है या जो जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसके उतने ही क्या होते हैं, जीरो. इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसका केवल एक ही जीरो होगा. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया तो उसके दो जीरो होंगे. और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके कितने जीरोस होंगे फिर? 3. तो सबसे पहले जब भी हम सॉल्व करें, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल ये तीनों के को फैक्टराइज करना और फैक्टराइज करके जीरो पता करना हम ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं. यही तो कारण है कि हमने सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू किया है ताकि आपको बड़ा आराम से सॉल्व हो. तो जब भी हम लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो एक जीरो आएगा, जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो दो जीरो आएंगे, और जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो 3 जीरो आएंगे. और हम बाई क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री होती है 4 उसको सॉल्व करेंगे तो 4 जीरो आएंगे. इट मींस जितना डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे. तो आपको इस ध्यान में रखना है, इतना दिमाग में लगा, इतना दिमाग पर जो है लोड नहीं लेना है कि इसके कितने जीरो होंगे. जैसे आपको पता लगे क्वाड्रेटिक है तो उसके दो जीरो होंगे, क्यूबिक है तो 3 होंगे और लीनियर है तो 1 होंगे. तो जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, हम जीरोस पता करना ही हम इसमें पता करेंगे.
अब हम यही इसको बता देते हैं जो आगे हमारा यूजफुल है। ये जो दो जीरोज आए हैं इनको हम बोलते हैं अल्फा और बीटा। इसका नाम है अल्फा और इसका बीटा। अब ये नहीं कि अल्फा कौन सा बीटा कौन सा, इनमें से कोई सा भी अल्फा बीटा हो सकता है। इसको अल्फा ले सकते हैं, इसको बीटा ले सकते हैं, इसको अल्फा और उसको बीटा ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनका क्या है कि हम नाम याद रख लें, क्योंकि इस बीच हम आगे इस चैप्टर में हम इनके रिलेशन भी पढ़ेंगे दोनों जीरोस के पॉलिनोमियल के साथ। क्या टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने जीरो पता करना तो सीख ही लिया है, हाउ टू फाइंड आउट द जीरो। अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसका एक जीरो होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो जीरो होंगे। यहाँ पे हम रिलेशन पढ़ रहे हैं, जो भी हम जीरो पता करेंगे, एक जीरो होगा तो एक, दो होगा तो दो, तीन होंगे तो तीन, उनका उसके कोएफिशिएंट के साथ। अब इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि कोएफिशिएंट को हमें ऐसे याद नहीं रखना चाहिए कि ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ये एक्स का। हमें याद रखना है उसको ए, बी और सी में। जैसे हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वो जो इसकी जनरल फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज कांस्टेंट टर्म। तो हमें इनका रिलेशन बताना है कोएफिशिएंट का। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, एक्स का कोएफिशिएंट बी और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है। तो इनका रिलेशन किसी भी पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट का उसके जीरोस के साथ हम पता कर रहे हैं। तो एक नाउ टेक एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमने पहले लिया था उसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू जीरो। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिकॉज इट हैज द डिग्री 2। अब आपको ये ध्यान रखना, जितना डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने उसके जीरो होंगे। 1 डिग्री का है तो एक जीरो होगा, 2 है तो दो जीरो होंगे, 3 है तो 3 जीरो होंगे। और आपको मैंने बताया ये जो इक्वेशन है वो कैसे सॉल्व होगी, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू जीरो। नाउ x इज द कॉमन, तो x प्लस 5 plus 2x plus 5 equal to 0. Now the two factors are x plus 2 and x plus 5. These are the two factors. Now we find out the zeros. The zeros are x plus 2 equal to 0 and x plus 5 equal to 0, and we put, so the value of x is minus 2 and x is minus 5. x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू माइनस 5, ये दोनों क्या है इस पॉलिनोमियल के जीरोज। अब आपको याद आ रहा होगा मैंने इनके नाम भी बताए थे, अल्फा एंड बीटा। तो अब अल्फा और बीटा तो दो जीरोज आ गए। जीरोज अभी हमने पता कर लिया, दीज आर द टू जीरोज। इनका कोएफिशिएंट नाउ द व्हाट इज द पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 नहीं प्लस 10 इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? व्हाट इज ए? ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं है तो ए की वैल्यू हो गई 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? बी इज 7 एंड सी इज 10। जो ये दो जीरोज हैं इनका हम ए, बी और सी के साथ रिलेशन प्रूव करेंगे, क्योंकि टॉपिक हमारा ये है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट है और द दो टू जीरोज हैं, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 एंड जो बीटा है वो है हमारा माइनस 5। टू जीरोज है और दो रिलेशन है। द रिलेशन इज अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। चलो हम इसको चेक कर लेते हैं रिलेशन को। अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज अल्फा? माइनस 2, बीटा माइनस 5। तो फर्स्ट रिलेशन वी हैव टू प्रूव माइनस 2 प्लस माइनस 5
इट इज इक्वल टू माइनस बी, बी से पहले माइनस है तो वी हैव पुट अ माइनस, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी 7 अपॉन ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 1, -2 + -5 बिकम्स -7 एंड -7 ब्रैकेट से माइनस है तो ये माइनस का 7 हो गया, तो -7/1 -7, तो ये रिलेशन हो गया प्रूव। चलो अब सेकंड रिलेशन, व्हाट इज द सेकंड रिलेशन? सेकंड रिलेशन इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C upon A. You know what is alpha? -2. Beta is -5. -2 into -5 is always equal to C upon A. What is C? C is 10 and A is 1. -2 and -5 when multiplied becomes 10 and 10 upon 1 is 10. तो it is also proved. तो हमारा इन दोनों के साथ रिलेशन भी प्रूव हो गया। तो ऐसे हम किसी भी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, अभी हमने जो सॉल्व किया है वो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, किसी भी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के हम दो जीरोस पता करेंगे, कोई से भी जीरो, ये आपकी बुक का ये एग्जांपल है जो मैंने सॉल्व किया है, और उन जीरो से ये जो ए बी और सी हैं, ए बी और सी मतलब जो कॉफिशिएंट है उनका हम रिलेशन प्रूव करेंगे। दो रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू -b अपॉन ए and alpha into beta is always equal to C upon A. Relation of the zeros and coefficient के बाद नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन टू जीरोज आर गिवन। मीन्स अगर हमें दो जीरो दिए हैं, दो जीरो किसके होते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के होते हैं। तो जब दो जीरो दिए हुए हैं तो उनसे हम क्या बनाएंगे? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। उसी एग्जाम्पल को ले लेते ताकि आपको आराम समझ में आए। अभी हमने इससे पहले जो दो जीरो पता किए थे वो जीरो थे -2 अल्फा जिसको हम बोलते हैं, और बीटा था हमारा -5। अब हम इन दोनों को यूज करके वापस ये जिसके जीरो थे वही पॉलिनोमियल अभी हम वापस बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं इस रिलेशन को। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है -c अपॉन ए। ये आपकी बुक में दे रखा है पेज नंबर 29 पे, लेकिन हमें इतना डिटेल में इस रिलेशन के साथ इसको सॉल्व नहीं करना है। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर हम वो फॉर्मूले में उन वैल्यूज को पुट कर दें तो डायरेक्ट जो है एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। मीन्स अगर इस फॉर्मूले में यहाँ पे हम वैल्यू प्लॉट करते हैं अल्फा प्लस बीटा की, मतलब सम ऑफ दी जीरोज, और यहाँ पे हम पुट कर दें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा, तो क्वाड्रिक कोई सा भी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो सकता है जिसके हमें दो जीरोज पता हो। चलो हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं x² अल्फा प्लस बीटा। जब हम अल्फा और बीटा को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? -7x प्लस अल्फा इंटू बीटा वैन -2 मल्टीप्लाई बाय -5 तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 10 x² माइनस माइनस प्लस तो प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है वापस फॉर्म में हो गया जिसके यहाँ ये दो जीरोज हैं। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला अगर हमें दो जीरोज पता हो तो हम कोई सा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता कर सकते हैं। अब आपकी बुक में जो है वो अल्फा और बीटा अलग अलग नहीं दिए हुए। जब आप 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो वहाँ डायरेक्टली क्या दिया हुआ है? सम ऑफ द जीरोज। एक जो है एक जो फर्स्ट नंबर है वो दे रखा है सम ऑफ द जीरोज और दूसरा दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो वो आपको डायरेक्टली इसमें पुट कर देना है और कोई ना कोई सा जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। नाउ टेक एन एग्जांपल, सपोज अल्फा प्लस बीटा पहले से दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ दी जीरोज हमें पहले से दिया हुआ है और वो दिया हुआ है सपोज करो -1, और तो सम ऑफ जीरो हो गया -1 पहले से ही, अलग अलग नहीं दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, सम दोनों का सम कंबाइंड दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया हुआ है सपोज करो 1/4। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होते हैं? अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब डायरेक्ट वैल्यू
ये जो वैल्यू है अब ना तो अल्फा है और ना बीटा है, ये डायरेक्ट क्या है अल्फा प्लस बीटा है, और ये डायरेक्ट क्या है अल्फा इंटू बीटा। तो इसको डायरेक्ट पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जो फॉर्मूला है हमारा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज माइनस वन एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस वन और माइनस वन प्लस वन एक्स को हम एक्स लिख सकते हैं, 1x इज एक्चुअली एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। तो अब आपको ये यहीं तक नहीं छोड़ना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हमें इसको इस फॉर्म में बिल्कुल करेक्ट करके लिखना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x आपको पता है एक्स स्क्वायर एक्स 1/4, तो 4 इज द एलसीएम, तो एक्स स्क्वायर तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। व्हेन वी टेक द एलसीएम 4 तो इट बिकम्स 4x स्क्वायर, इट बिकम्स 4x, और ये यहाँ पे 4 तो इसके नीचे है ही डिनोमिनेटर, तो इट बिकम्स 1। तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 4 कहाँ गया, व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई तो इट बिकम्स 0। तो जो करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये होगी। तो हमें दो जीरोज पता हो या सम ऑफ द जीरोज पता हो तो वी कैन इजीली फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर दो जीरो दिए हुए हों तो पहले सम और अल्फा और बीटा खुद पता करके यहाँ लिख दें। अगर डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हो तो डायरेक्ट फॉर्मूले पुट कर दें और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। जो ये दोनों टॉपिक हमने पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आराम से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पता करना है जीरोज एंड रिलेशन, जो हम आपको बता ही चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करना है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक यू।